Assalamu alaikum. All right, students. Now we enter into a very interesting part of the course, which is about probability. And सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि if you focus on things around you and you think critically, you will come to know that a lot of events, most of the events in life, they are very random. You usually do not plan them, or either if you plan them, you do not end up, the way you want them to happen. So life may a lot of things are random. So research also looks at random events. उसकी reason ये है कि a lot of variables around us they exist, and we want to study those variables. If something is constant, so there is no benefit of studying it, because once you know about a constant thing, so there is not much to explore. But variables, they are very interesting. They adapt, and they modify. They show you, variations. So sometimes that knowledge can be very interesting. It can be in business, it can be in medicine, it can be in any other field. So जब हम research की बात करते हैं तो random events जो हैं they are very important. Even हम जब life sciences की बात करते हैं तो जो हमारे random controlled trials होते हैं, random controlled trials होते हैं, ठीक है. इसके अलावा we have cohort studies. Even we have cross-sectional studies when we try to collect only the data once. We have these kind of studies in which we use probability to actually understand the random events. And what is probability? It's a kind of expectation. Recently, people were discussing about Bill Gates' speech about COVID-19. It was not particularly about the COVID-19, but in 2015, Bill Gates gave a TED talk in which he actually explained that the next pandemic would be something similar to a disease which can spread flu, right? So that was an expectation. How that person came to know that this is going to happen, and why there is certain probability attached to this kind of event. So this is all about random events and knowing expectation which is related to these events, उनकी expected values को मालूम करना. So जो लाइफ साइंसेस की सीरीज है उसमें इसको रिस्क फैक्टर भी बोलते हैं, मेडिसिन के हवाले से भी रिस्क फैक्टर के नाम दिया जाता है. तो probability has a lot of use in estimating or kind of predicting future events. Of course, those future events are not according to your expectations. They will always have an element of uncertainty. You cannot be 100% sure. But given on historical data or the information at hand, if you properly analyze it, and you come to analyze the information in a statistical method, you will find out that there are sometimes very robust kind of analysis that can help you to see the relationship between variables, or maybe the cause and effect that exist in our surroundings. So scientific studies जो हैं उनमें probability का बहुत बड़ा role है. So that's why we try to study probability before we go into complex kind of statistical analysis, such as when we build confidence intervals, or we actually go and look at different kind of hypothesis testing, and we try to study correlation, regression. These are the methods through which we try to understand the world around us. So उसके लिए probability के basic concepts को understand करना बहुत ज़रूरी होता है. And later on I will share a couple of research papers with you, जिसमें you will find out कि confidence intervals को use करके और probability values को use करके बहुत सारी ऐसी research insights जो हैं वो gather की गई हैं जो कि human life के लिए बहुत beneficial हो सकती हैं. Of course, ये this knowledge of probability, this has multiple aspects and dimensions. It can be very objective, यानी कि हम जो numbers में हमें show हो रहा है उसको follow करने की कोशिश करते हैं, but it also has a subjective element, an opinion element, कि जो हमारे पास numbers में statistical analysis में जो कुछ हमारे पास quantitative form में होता है उसको as a guideline हम लेते हैं और उसके ऊपर we try to build up
with our own expertise or the expert knowledge which is available in the literature. तो सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि what is a probability experiment. अब इसमें there are two words. Probability means chance. That event happen because of their chances. If an event has more chance, it has more probability of happening. And probability experiment आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवाया कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम जब कोई इंटरवेंशन करते हैं, जो काम रिसर्चर करता है उसको हम एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स का नाम देते हैं. तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट जब हम बात करेंगे तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम कोई इंटरवेंशन करते हैं और उसके रिजल्ट्स को हम चांस के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इफ़ वी डू एक्शन ए तो उसके रिजल्ट में ए बी सी डी जो आउटकम्स आएंगे, ए का क्या चांस है, बी का क्या चांस है, सी का क्या चांस है और डी का क्या चांस है. ठीक. सो अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट is an action. So it needs to be an action. It is something which is intervened through which specific results, for example, counts जब आपने frequency पढ़ी थी, तो that is basically counts और measurements और responses are obtained. तो आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमने एक एक्शन लिया और उसके अगेंस्ट जो आउटकम्स आए हैं उसमें किसी पर्टिकुलर केस के कितने काउंट्स हैं या उसकी कितनी मेजरमेंट्स हैं या उसके कितने रिस्पॉन्सेज हैं, ये प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल अब आपको कुछ ट्रिवियल किस्म की बहुत ही छोटे लेवल की एग्जांपल्स मतलब नज़र आएंगी. वो इसलिए क्योंकि गेम्स आर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी. उसकी एक रीज़न है बिकॉज अ लॉट ऑफ चांस इज इन्वॉल्व्ड इन गेम्स. सो फॉर एग्जांपल जब आप डाई रोल करते हैं लूडो की गेम में या किसी भी ऐसी गेम में जहाँ पे डाई रोल करनी है, तो देयर आर 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑन डाई, 1 2 3 4 5 एंड 6, और हर एक आउटकम का जो है वो एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 1/6. सो 6 में से एक चांस हर एक वैल्यू का है. तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी हुई वो हमारी, अगर इन सबको ऐड करें हम 1/6 को 6 दफ़ा ऐड करेंगे तो ये 6/6 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1. So 1 is basically 100%, right? So 100% probability को हम distribute कर देते हैं जब हम die को roll करते हैं 6 मुख्तलिफ outcomes में. The result of a single trial, okay, the result of a single trial in a probability experiment is the outcome. तो एक single trial का जो result होगा उसे हम क्या बोलेंगे? Outcome. So अगर एक बार हमने die roll की तो उसका outcome क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 and 6. Now the set of all possible outcomes for an experiment is the sample space. अब मैंने आपको बताया कि अगर हम डाई को रोल करते हैं तो मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, 1 to 6. तो ये क्या है? ये 1 to 6 हमारा sample space है. Sample space means all the possible outcomes that can emerge as an outcome in a probability experiment. ठीक है? For example, the sample space when rolling a die has 6 outcomes and इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अक्सर सेट की फॉर्म में लिखा जाता है that the probability of rolling a die would be equal to 1 2 3 4 5 6 in curly brackets. So just to show you that this is a set of events. Now what is an event? An event consists of one or more outcomes and is a subset of the sample space. तो जब आप डाई को रोल करेंगे तो उस पर 6 के 6 आउटकम्स तो एक टाइम पे नहीं आएंगे, उसमें से सिर्फ एक ही रिजल्ट आपको शो होगा, तो दैट इज एन इवेंट. ठीक है? एंड दिस इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही रिजल्ट है, हमने एक ही चीज़ को इन्वॉल्व किया, एक डाई को इन्वॉल्व किया. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम डाई को रोल करते हैं या कॉइन को टॉस करते हैं. तो एक रिजल्ट आपको एक आउटकम डाई पे मिलेगा और एक कॉइन पे मिलेगा, तो दैट वुड बी अ कंपाउंड इवेंट. So we have simple events जिनमें we only have a single outcome, but then we have compound events when we have more than one outcome. So single event की अगर आप देखें तो die is rolled, event A is rolling an even number. So आपने एक die roll की और जो event A आपके सामने आया उसमें एक even number सामने आया, तो आप देखें even number कौन कौन से हो सकते हैं? 2 4 और 6. So there are 3 possibilities of this event. ठीक है? तो इसकी जो
प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 3/6, क्योंकि 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है और 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो दिस इज इक्वल टू 50%। सो 50% चांस है कि इवेंट ए जो है उसमें हमारे पास एक इवन नंबर आएगा, राइट। सो प्रोबेबिलिटी की जो स्टडी है दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं। तो देयर आर three very conventional forms of probability that we study. Number one is classical probability. इसे हम theoretical probability भी बोलते हैं, क्योंकि this deals with theoretical models, mathematical models. तो यहाँ पे आपके सामने फॉर एग्जांपल एक probability किसी इवेंट की दी हुई है, तो लिखा हुआ नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। जैसे कि डाई को हमने रोल किया, ठीक है, तो डाई को हमने रोल किया तो हमने कहा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इवन नंबर हमारा आउटकम आएगा। तो फिर हमने कहा कि जब प्रोबेबिलिटी है एक डाई के रोल करने की और इवन नंबर की, तो उसमें हमने देखा कि सैम्पल स्पेस में हमारे पास 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। टोटल अगर सैम्पल स्पेस अगर हम देखें, राइट, सैम्पल स्पेस को टोटली अगर हम देखें तो टोटल कितनी वैल्यूज हैं डाई पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट, हमारे जो आउटकम्स हैं जो हम चाह रहे हैं वो है इवन नंबर्स, तो वो 3 है, 2 4 या 6 आ सकता है, ठीक है। 3 बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आउटकम्स, तो ये हमारे पास 6 है। तो हमारे पास 1/2 और 50% जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। जब हम डाई को रोल करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए रोलिंग अ 5। अब हमारे पास यही सैम्पल स्पेस है, लेकिन अगर हमारा इवेंट ये है कि 5 आएगा उसमें से, तो 5 तो एक ही पर्टिकुलर आउटकम है, तो 6 में से एक आउटकम, दैट मीन्स कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 6 आएगा, तो दिस वुड बी 1/6। इसकी परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज अराउंड 16.7%, right? Okay, so that was classical probability, because this is total mathematical probability कि हमारे पास कितने आउटकम जो है हम डिजायर कर रहे हैं, डिजायर्ड आउटकम्स, और हमारे पास सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। सो n से आपको याद होगा कि n को हमने पहले भी यूज किया था सैम्पल स्पेस के लिए, कि एक सैम्पल में कितनी वैल्यूज हैं, तो सैम्पल स्पेस को हम n से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। दिस इज नथिंग न्यू, आपने ऑलरेडी ये जो है इसको यूज किया हुआ है, ऑल्दो विद अनदर नेम। आपको याद हो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यूज करते थे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी इवेंट की, that is the probability, statistical probability or empirical probability. And by empirically we mean that we have systematic observations, okay। So when we do research studies, तो हम उसमें systematic observations करते हैं कि हमारे पास outcomes क्या आ रहे हैं। तो for example अगर हमने total 50 ट्रायल्स रन किए, ओके, और उसमें 10 बार हमारे पास आउटकम वो आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि कोई वायरस जो है वो डिटेक्ट हुआ है या कोई डिजीज डिटेक्ट हुई है, तो 50 ट्रायल्स रन किए हमने और 10 जो है हमारे पास आउटकम्स पॉजिटिव आए हैं। तो जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं उनकी यहाँ पे परसेंटेज है 20%। दिस इज बेसिकली द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज आउटकम्स or people in which you saw that disease or virus, ठीक है। but this 20% is also probability, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनमें जो n है that is the total testing and frequency of a particular outcome is f. same with COVID-19, अगर आप इसको आजकल की सिचुएशन के साथ भी कंपेयर करना चाहें, तो हमारे पास कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है जिसमें हम बता सकते हैं कि ओवरऑल इस यूनिवर्स में कितने परसेंट जो है दे एक्चुअली बिकम विक्टिम ऑफ दिस वायरस एंड हाउ मेनी कैन बी डिजीज्ड आउट ऑफ दैम। सो वी ओनली हैव एन एम्पिरिकल मॉडल जो कि हमने रियल सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से गैदर किया है। तो उसमें हम
टोटल जितने भी लोग टेस्ट हुए हैं अभी तक दुनिया में उनको डिनोमिनेटर में रखेंगे और जितने भी लोगों में पॉजिटिव रिजल्ट आया उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, तो हमारे पास उस कोविड-19 वायरस की प्रोबेबिलिटी, नोवेल वायरस की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। A travel agent determines that in every 50 reservations she make 12 will be for a cruise. एक ट्रैवल एजेंट है और वो जब भी रिजर्वेशन करती है तो 50 रिजर्वेशन में से 12 ऐसी होती हैं जिसमें क्रूज जो है उसकी रिजर्वेशन होती है। What is the probability that the next reservation she makes will be for a cruise? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट रिजर्वेशन जो वो करेगी वो एक प्रोबेबिलिटी उसकी बतानी है कि वो क्रूज की रिजर्वेशन होगी। तो टोटल 50 रिजर्वेशन हुई हैं, उसमें से 12 ऐसी हैं जो कि जिनमें क्रूज जो है उसकी रिजर्वेशन की गई है। तो हमारे पास 0.24 यानी कि 24% जो है प्रोबेबिलिटी है कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो एक क्रूज को रिजर्व करेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू वर्क विद द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एंड देन वी हैव a particular law which is the law of large numbers, and this is a very interesting law कि अभी अगर आप कॉइन को टॉस करें तो कॉइन को टॉस करने से आपको पता है कि 50-50 चांसेस हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। और 50-50 चांसेस का मतलब ये है कि अगर 100 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया जाए तो उसमें 50% टेल आना चाहिए और 50% हेड आना चाहिए। But usually if you sit and toss the coin for 100 times, so you will come to know that ऐसा होता नहीं। And there is a particular reason for that. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं क्योंकि आपकी जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है वो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट है। क्या हमारी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी एक हो सकते हैं? दैट कैन बी पॉसिबल, लेकिन उसके लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए होंगे कि हम सारी उम्र जो है वो कॉइन ही टॉस करते रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मिलियन टाइम्स जो है कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें से 500,000 टाइम जो है वो आपको पता चलेगा कि जी टेल आया है और 500,000 टाइम जो है वो हेड आया है। अब ये एग्जैक्टली 500,000 नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल 5 लाख में से 4,99,000 इतने टाइम्स हो सकता है हेड आए और बाकी टाइम जो है वो टेल आए। लेकिन 49.9% 49.9% एंड 50.1% ये प्रोबेबिलिटी जो है ये 50/50 प्रोबेबिलिटी के बहुत पास है। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज कि जितना ज़्यादा आप अपने ट्रायल्स को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को इंक्रीज करेंगे, तो आपकी जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है वो आपकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के क्लोज होती जाएगी। उसमें भी वही रेशो आनी शुरू हो जाएगी जो कि आपकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में। इसीलिए when we try to study different subjects or maybe different kind of elements in research, so we try to gather a bigger sample. Why? The reason is because the more elements or subjects are included in your sample, the more robust or generalizable results you can gather from the research. ठीक है, तो आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट करते थे। उसमें किसी भी एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करते थे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती थी। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये उस क्लास की प्रोबेबिलिटी भी कहलाती है। इसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है कि the following distribution represent the age of 30 students in a statistics class. What is the probability that a student is between 26 and 33? यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है वो ये कि the word random is missing from here. But this is very important because when we study research papers, we have to see that the selection of elements or subjects in the research was done randomly or not. And this will be very much related to a lot of statistical analysis that we're going to see in future. Random selection क्या होती है? That I do not have my purposive selection involved.
मैंने खुद से अपनी मर्जी से किसी इंसान को सिलेक्ट नहीं किया, बट आई इन्वॉल्व चांस इन इट, कि मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा और उसमें चांस इन्वॉल्व है, कोई भी उसमें सेलेक्ट हो सकता है। तो आपने एक स्टूडेंट को रैंडमली किसी क्लास में सेलेक्ट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट जो है उसकी एज 26 से 33 होगी। तो देर आर 8 पीपल सिटिंग इन द क्लास आउट ऑफ 30 हु हैव दिस एज ग्रुप। तो 8/30 जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, विच इज अराउंड 26.7%. Okay, so you can write the probability in decimal form as well as percentage form. Now there is a third kind of probability, and this is very interesting कि क्रिकेट मैच होता है तो उससे पहले रमीज राजा साहब जो है वो पिच पे आके बता रहे होते हैं कि कौन सी टीम जो है प्रोबेबिलिटी है कि मैच जीतेगी, जो पहले बैटिंग करेगी हो सकता है उसके चांसेस ज़्यादा हों, जो पहले बॉलिंग करेगी हो सकता है उसके चांसेस ज़्यादा हों। why that person is giving you that expert opinion? उस एक्सपर्ट ओपिनियन को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे कंसर्न ये होता है कि एक इंसान की या एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, दे आर सो एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड दैट दे गिव अ सब्जेक्टिव ओपिनियन। उसके पीछे कोई डेटा होना ज़रूरी नहीं है, बट दे कैन प्रोवाइड यू अ रफ एस्टिमेट कि व्हाट कुड बी द रिजल्ट्स ऑफ दिस इवेंट, and that is what we call subjective probability, because whatever they are saying is just an estimate that cannot be correct exactly. It will always have a little bit of uncertainty involved. That's why they are giving their expert opinion. ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट ओपिनियन होता है किसी भी एक्सपर्ट का, उस सब्जेक्टिव ओपिनियन को हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, राइट। सो अगर एक बिजनेस एनालिस्ट है एंड ही इज प्रिडिक्टिंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन यूनियन going on strike is 15%. So उसने ये बताया है कि उसके एक्सपर्ट होने की वजह से, उसके बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से वो क्या समझता है कि आखिर कितने परसेंट चांस है कि जो लेबर है वो स्ट्राइक पे जाएगी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स हैं, उसमें से सबसे पहला रेंज रूल है कि प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1, where 0 means the event is impossible to occur, event won't occur, and 1 means that it is 100% chance that the event will occur. जब आप वेदर फोरकास्ट देखें कभी अपने मोबाइल की एप्लीकेशन पे, तो उस पर आपको परसेंटेज फॉर्म में बारिश के बारे में बताया गया होता है कि कितने परसेंट चांसेस। तो इट इज़ नेवर मोर देन 100%, बिकॉज इट कैन नॉट बी मोर देन। प्रोबेबिलिटी को आप हमेशा लेस देन 100% ही लिखेंगे। 100% मीन्स कि देर इज़ नो चांस ऑफ नॉट रेनिंग, एंड 0% चांस मीन्स देर इज नो चांस ऑफ रेन। ठीक है, और जब आप बात करेंगे 0.5 मतलब 50%, तो 50% का मतलब है कि 50% चांस है कि रेन हो सकती है और 50% चांस है कि रेन नहीं होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दो इवेंट्स हो सकते हैं 50% चांस पे, रेन होएगी या नहीं होएगी। तो these two events are complementary with each other. For example, raining is complementary to not raining, and not raining is complementary to raining. So if you have the probability of one event, you can find out the probability of the complement of the event, because total probability is 100%. So if you add event and complement probability, it will give you a result of 100%. So if you want to find out the probability of an event, just deduct the probability of complementary event from 1, which is 100%. And if you want to know the probability of complement, just deduct the probability of event from 1. All right. So for example, if there are 5 red chips, 4 blue chips, and 6 white chips in a basket, okay, 5 red chips, 4 blue chips, and 6 white chips. How many total chips? 4 plus 5 plus 6, that gives us 15. So there are 15 total chips. Find the probability of randomly selecting a chip. You're selecting only one chip. Okay, I'll write 1 here. That is not blue. Now you have to read the statement of your examples and questions very carefully. When probability is involved, the only mistake students make, they're very clear about these rules because they are very few and they're very straightforward. The problem that exists is the lack of proper focus on reading. You have to understand the statement first, what the question is posing, and once you understand that, then you can go and solve it. So here, the probability that we need to find is of a complement event, not blue. All right, so let's see.
So selecting a blue chip, probability of selecting a blue chip is 4 by 15. If you see, there are 4 blue chips. So the probability of a blue chip is 4 by 15. So this is the probability of an event. But this is not something which is required here. What we require is the probability of complement of the event. So as I told you that you have to deduct the probability of event from 1, and you will get what? The probability of complement of the event. So if you deduct 4 by 15 from 1, that is 11 by 15, and this is equal to 73.3%. So there is 73.3% that if you randomly select a chip from that group of chips, it won't be a blue one, right? So next we talk about conditional probability and multiplication rules. Then that when we have a lot of events, how can we multiply the probability of different events with each other? And sometimes there can be a conditional event, which means if there is a series of events, there is a compulsory event that needs to happen in order to other events to happen. Okay, we will clear that with examples. Right. So a conditional probability is a probability of an event occurring given that an other event has already occurred. कि एक इवेंट जो है उसका पहले होना जरूरी है दूसरे इवेंट के होने के लिए. ठीक है, यहाँ पे हम अगर प्रोबेबिलिटी की डिनोटेशन को देखें तो वो भी ऐसी है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन कि ए हैपन हो चुका है. ठीक है, एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं इसको. देयर आर 5 रेड चिप्स, 4 blue chips and 6 white chips. Again 15 chips are there, so n is 15 in a basket. 2 chips are randomly selected. Now we are not selecting only one chip, we are selecting 2 chips. They are randomly selected. Find the probability that the second chip is red given the first is blue. Okay, अब यहाँ पे एक चीज आपने बड़े गौर से देखनी है कि हमने यहाँ पे उसने कहा है कि find the probability that the second chip is red. दूसरी चिप कौन सी है? रेड. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो हमने सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. सही है, तो यहाँ पे सेकंड इवेंट क्या है? सेकंड चिप इज रेड. तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? रेड चिप की. ठीक है, रेड चिप गिवन कि उससे पहले जो फर्स्ट चिप सेलेक्ट हुई है वो कौन सी है? ब्लू. So what we are writing here is basically the probability of our chip given the blue chip. Right. So यहाँ पे आपको नजर आ रहा है probability of selecting a red chip given that first chip is blue is equal to 5/14, and this is about 35.7%. अब क्वेश्चन यहाँ पे मैं पोज करता हूँ कि जी ये 5/14 कहाँ से आया? ठीक है, अगर आप देखें तो पहली चिप जो हमने सेलेक्ट की, पहली चिप टोटल चिप्स कितनी थी? 15. ठीक है, अब 15 में से हमने एक चिप सेलेक्ट की और हमें उसने बता दिया कि आपकी पहली चिप जो आपने सेलेक्ट की वो कौन सी है? वो है ब्लू. अगर मैंने एक ब्लू चिप निकाल ली तो मेरे पास जो बास्केट है उसमें 15 में से बाकी कितनी चिप्स रह गई? 15 में से एक कम हो गई, तो आई हैव 14 चिप्स विद मी. सो यू कैन सी वी हैव द नंबर 14 हियर इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, अब ये जो चिप मैंने निकाली है उसके बारे में वो और इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है. तो कहते हैं assume that the first chip is not replaced, कि जो चिप मैंने निकाली है उसको मैंने किसी और चिप के साथ रिप्लेस नहीं किया. दैट मीन्स कि अब बास्केट के अंदर 14 चिप्स अवेलेबल है, 15 नहीं है, उनमें से एक की कमी हो चुकी है. अच्छा, अभी मुझे ये पता चल गया कि बास्केट में टोटल चिप्स 15 है. अब मुझे कौन सी फाइंड करनी है? रेड चिप. अब मुझे देखना ही होगा कि जो पहला इवेंट हुआ क्या उसमें कोई रेड चिप कम हुई? नहीं, उसमें सिर्फ ब्लू चिप कम हुई. तो रेड चिप कितनी थी? 5. वो पहले भी 5 थी और एक चिप जाने के बाद भी 5 है. तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ गया जी? 5. सो प्रोबेबिलिटी आ गई 5/14. सो दिस इज 35.7%. तो 35.7% प्रोबेबिलिटी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कि अगर पहली चिप ब्लू एक्सट्रैक्ट हुई है तो सेकंड चिप रेड होगी. अब इसको आप इसी एग्जांपल को खुद से एक बार जो है प्रैक्टिस करने के लिए इसको इंटरचेंज करके देखें कि अगर पहली चिप जो है वो रेड चिप सेलेक्ट होती है तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. एंड आई एम श्योर यू विल बी इजीली गोइंग टू डू इट.
एक और एग्जांपल देखते हैं, और ये एग्जांपल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कंटीजेंसी टेबल यूज़ किया गया है। तो ये जो टेबल है इसको हम कंटीजेंसी टेबल कहते हैं। और इसको कंटीजेंसी टेबल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ टू वेरिएबल्स इन इट। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नज़र आ रहा है जो कि जेंडर है। आपको बताया गया है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो मेल और फीमेल थे, और दूसरा जो आपके पास वेरिएबल आ रहा है वो एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ये कौन सा वेरिएबल है जी। 100 कॉलेज स्टूडेंट्स वर सर्वेड। आपने 100 स्टूडेंट्स को सर्वे किया है एंड आस्क्ड हाउ मेनी आवर्स अ वीक दे स्पेंट स्टडिंग। तो ये यहाँ पे जो आपके पास एक वेरिएबल है वो कौन सा है? आवर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक जेंडर और एक आवर्स ऑफ स्टडी। तो जब एक टेबल के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आपको इस मैट्रिक्स की फॉर्म में दिए गए होते हैं, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टिजेंसी टेबल। द रिजल्ट्स आर इन द टेबल बिलो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट स्पेंड्स मोर देन 10 आवर्स स्टडिंग गिवन दैट द स्टूडेंट इज अ मेल। तो हमने ये पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम रैंडमली एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करें तो वो स्टूडेंट हो जो कि मेल भी है। Number one condition is that the student is a male, और नंबर टू प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है कि 10 से ज़्यादा घंटे वो पढ़ता हो। तो आप देखिए हमारे पास एक रो है जिसमें मेल्स दिए हुए हैं और एक कॉलम है जिसमें मोर देन 10 आवर्स स्टडी दी गई है। तो यहाँ पे ये जो 16 नंबर है ये शो करता है कि देयर आर 16 मेल हु स्टडी मोर देन 10 आवर्स। ओके, आउट ऑफ आउट ऑफ 49 मेल्स। टोटल जो 49 मेल हैं उनमें से 16 मेल ऐसे हैं जो कि 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपको ये 16/49 जो है ये नंबर मिल जाता है। 16 नंबर दैट द पर्सन इज अ मेल, 49 टोटल मेल, एंड 16 द पर्सन इज स्टडिंग मोर देन 10 आवर्स। तो आपके पास 32.7% जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। राइट, नेक्स्ट इज टू स्टडी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी थी उसको स्टडी किया हमने। उसमें कंडीशन अवेलेबल थी हमारे पास कि एक कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी जो है उसको जानेंगे कि आखिर क्या प्रोबेबिलिटी है सेकंड इवेंट की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दो इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब हो सकते हैं और डिपेंडेंट कब हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और वर्ड भी यूज़ होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दो इवेंट्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करते या फिर उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। वेन डायग्राम बनाई जाती है अक्सर। ये एक वेन डायग्राम है जिसमें यू हैव इवेंट ए एंड इवेंट बी एंड देयर इज नो एरिया ओवरलैपिंग, सो दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Two events are independent if the occurrence of one of the events does not affect the probability of the other event. Example क्या है? For example, क्रिकेट मैच और हॉकी मैच, दो मुख्तलिफ स्टेडियम्स में ये दो मैचेस हो रहे हैं। तो क्रिकेट मैच में अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है और हॉकी में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा है, तो क्या रिलेशनशिप है दोनों मैचेस का आपस में? क्या ये पॉसिबल है कि अगर क्रिकेट में पाकिस्तान जीतेगा तो हॉकी में भी पाकिस्तान जीतेगा? No, that is not possible because these two events are independent. उन दोनों की अकरेंस जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है, राइट? लेकिन डिपेंडेंट इवेंट्स भी हो सकते हैं। अगर इस साल बारिश ज़्यादा होगी तो हार्वेस्ट ज़्यादा होगी, अगर इस साल बारिश कम होगी तो हार्वेस्ट कम होगी। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो आपने जब स्टेटमेंट को स्टडी करना है प्रोबेबिलिटी के हवाले से, तो उसमें ये ज़रूर अंडरस्टैंड करना है कि इन दिस पर्टिकुलर केस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्जांपल में अब हम देखते हैं कि आखिर जो इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, सेलेक्टिंग अ डायमंड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स। एक स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से आपने डायमंड सेलेक्ट करना है, डायमंड का कार्ड सेलेक्ट करना है। पुटिंग इट बैक इन द डेक एंड देन सेलेक्टिंग अ स्पेड फ्रॉम द डेक। फिर उसको वापस रखना है और उसी में से एक नया कार्ड सेलेक्ट करना है स्पेड का। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी की वर्ड्स हैं वो ये है, पुटिंग इट बैक इन द डेक। कि आपने पहला कार्ड सेलेक्ट किया तो एक डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जी। ठीक है, क्योंकि एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं
और 4 सूट होते हैं टोटल, तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52। अब आपने एक कार्ड सेलेक्ट किया और वो कार्ड कौन सा है, डायमंड का। अब आपने निकाला, उसको देखा, अच्छा ये डायमंड का कार्ड है, उसको वापस रख दिया, पुटिंग इट बैक इन द डेक। तो जब आपने वापस रख दिया उसको, दैट मीन्स कि कार्ड कितने रहे, 52 के 52, उनमें कोई चेंज नहीं आया। सो पहले इवेंट ने दूसरे इवेंट में कोई चेंज नहीं प्रोड्यूस की। सो दिस इज इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इवेंट्स, और इनकी प्रोबेबिलिटी भी इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी देखना चाहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि एक स्पेड को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 13/52 होगी, क्योंकि स्पेड के 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, और टोटल 52 हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है अगर आप पहला कार्ड जो सिलेक्ट करते हैं वो डायमंड हो और दूसरा आपका स्पेड हो। तो पहला आपने डायमंड सेलेक्ट किया, उसको वापस रख दिया, फिर आपने टोटल कार्ड्स देखे तो वो 52 के 52 हैं, क्योंकि पहला कार्ड आपने वापस रख दिया। तो अब उसमें से भी अगर आप स्पेड को निकालेंगे तो स्पेड के 13 कार्ड्स ही हैं उसमें। ठीक है, तो व्हेन वी रिप्लेस, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, पुटिंग इट बैक इन द डेक। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो जब रिप्लेसमेंट होगी तो आपके ओवरऑल सैंपल स्पेस में कोई चेंज नहीं आएगी। तो सैंपल स्पेस में चेंज ना आने की वजह से ये जो इवेंट्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट इंटरवीनिंग ईच अदर। लेकिन अगर हम पहला कार्ड निकालते और उसके बाद जो दूसरा कार्ड है, ठीक है, पहला कार्ड निकालने के बाद उसको रिप्लेस ना करते और दूसरा कार्ड एक्सट्रैक्ट करते, तो पहले में 52 टोटल कार्ड्स थे, और रिप्लेस ना करने की वजह से दूसरे टाइम 51 रह जाते। तो पहले इवेंट का दूसरे इवेंट पे इफेक्ट है, उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। तो इनको हम बोलते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी कहलाते हैं, और जो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उन्हें हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताया गया है। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने अगेन यही देखना है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर तो दोनों इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, वो फॉर एग्जांपल 20% है, 0.2। उसकी हॉकी के साथ जो है 0.7 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर देंगे, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, एंड का। जब भी एंड का वर्ड आएगा तो हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी, एक में वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो जब और का वर्ड आएगा तो हम ऐड करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एडिशन रूल। यहाँ पे हम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन रूल में वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। एंड का वर्ड बहुत ज़रूरी है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो सिंपली उनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अगर डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो फिर हम प्रोबेबिलिटी को और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड इवेंट जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट होगा। क्यों, आखिर सेकंड इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्यों कैलकुलेट होगा, उसकी रीज़न ये है कि जब हमने प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की कैलकुलेट की तो उसकी वजह से कोई चेंज आया सेकंड इवेंट में, तो दिस बिकम्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कंडीशनल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड, आपने दो कार्ड सेलेक्ट किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले हमने रिप्लेसमेंट की एग्जांपल पढ़ी, तो वो एग्जांपल है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट करें, दैट मीन्स कि हम पहले वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमारे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सो दो कार्ड सेलेक्ट किए हैं हमने और विदाउट रिप्लेसमेंट, पहला कार्ड निकाला, उसको रिप्लेस नहीं किया, तो पहले डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स थे, जब एक कार्ड निकाल लिया तो 51 रह गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ डायमंड, तो पहली प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, डायमंड की, एंड देन सेलेक्टिंग अ स्पेड। ओके जी, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड एंड स्पेड।
पहले इवेंट हमारा ए डायमंड का है और बी स्पेड का है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, अब देखिए हमने लिखी प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, क्योंकि हमें पता है कि जब हम डायमंड निकाल लेंगे तो 52 कार्ड्स की बजाय 51 रह जाएंगे, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड गिवन दैट द फर्स्ट कार्ड वाज डायमंड, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब देखते हैं, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के 52 में से, तो पहली जो इवेंट हुआ हमारा उसमें 13/52 मल्टीप्लाइड बाय 13 बाय स्पेड 13 है, क्योंकि पहले में हमारा कोई स्पेड नहीं निकला। अगर पहला कार्ड स्पेड का होता तो बाकी 13 में से 12 रह जाते, लेकिन क्योंकि स्पेड पहले एक्सट्रैक्ट नहीं किया हमने, तो हमारे पास स्पेड 13 के 13 मौजूद हैं डेक में। सो 13 स्पेड्स हैं डिवाइडेड बाय 51 कार्ड्स, क्योंकि अब 52 नहीं है, एक डायमंड निकल चुका है। सो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास दैट वुड बी 6.4%। तो कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पे आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 169, डिवाइडेड बाय 52 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे 2652 आंसर आएगा आपका। इस डिवीजन के बाद आपको 6.4% जो है प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो 6.4% प्रोबेबिलिटी है कि जब आप दो कार्ड्स किसी भी डेक का कार्ड से निकालते हैं तो पहला डायमंड होता है और दूसरा कार्ड जो है वो स्पेड होता है, गिवन कि जो पहला कार्ड है वो आप रिप्लेस नहीं करते। ठीक है जी, तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल द मल्टीप्लिकेशन रूल। और एक एग्जांपल देखते हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है क्योंकि ये काफ़ी ट्रायल्स में यूज़ होगी आगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको असाइनमेंट में भी नजर आएंगे जिसमें आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अ डाई इज रोल्ड एंड 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। आपने एक डाई को रोल किया और 2 कॉइन्स को टॉस किया। अब देखें, डाई को रोल करना और कॉइन्स को टॉस करना, क्या दे विल change the result of each other? I don't think so, because die has its own outcomes and coins have their own outcomes. ठीक है, सो आपने एक डाई को रोल किया और 2 कॉइन्स को टॉस किया। अब करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5 फ्लिपिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, अब आपने एक कंपाउंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, अगेन की वर्ड हमारा यहाँ पे एंड, रोलिंग अ 5 एंड फ्लिपिंग 2 कॉइन्स। सो प्रोबेबिलिटी क्या है रोलिंग अ 5 की? 5 तो एक ही होता है ना 6 में से, तो 1/6। और जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। तो अब हम इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5 एंड फ्लिपिंग 2 कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड टेल, मतलब 2 टेल्स, यानी कि 2 कॉइन को टॉस करने की टेल्स, उनमें प्रोबेबिलिटी। तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के आपके डाई पे 5 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज 1/24 एंड दैट इज इक्वल टू 4.2%। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में लिखूं, क्योंकि व्हेन वी डिस्कस प्रोबेबिलिटीज वी डिस्कस इन परसेंटेज फॉर्म, दैट इज मोर इंट्यूटिव। मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा कॉग्निटिव एलिमेंट शामिल है। वैसे डेसिमल पॉइंट्स में भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता, कैलकुलेशन में डेसिमल पॉइंट्स में लिखते हैं। अब बात करते हैं एडिशन रूल की। तो जब हम बात करेंगे एडिशन रूल की, तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोलते हैं। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईच अदर, दे डोंट हैव एनी इंटरवेंशन इन ईच अदर। एक के होने से दूसरे के होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे कैन अकर एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उनकी अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो ऐसी बनेगी कि उसमें आपको सेपरेशन नजर आएगी, दोनों इवेंट्स में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। हाँ, जहाँ पे वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो वहाँ पे आपको एक ओवरलैपिंग एरिया नजर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से ये बात और क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, देखें, डिसाइड इफ द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहला इवेंट है रोल अ नंबर लेस देन 3 ऑन अ डाई। ठीक है, एक डाई आप रोल करें और उस पर लेस देन 3 नंबर आए, 1 2, 3 से 1, 3 से कम 1 एंड 2 ही होते हैं। तो इवेंट भी, दूसरा इवेंट ये है कि रोल अ डाई, रोल अ 4 ऑन अ डाई, कि आपने डाई रोल की और उस पर 4 आ गया। तो क्या इसमें कुछ ओवरलैपिंग है? लेस देन 3 एंड 4 इज नॉट लेस देन 3, तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक और इवेंट देखते हैं जी, कि हमने इवेंट ये है कि सिलेक्ट अ जैक फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स,
कि एक डेक ऑफ कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से जैक को सिलेक्ट करें, तो 4 जैक्स होते हैं, डायमंड का जैक होता है आपके पास, स्पेड्स का जैक होता है, ठीक है, सो ऑन, 4 जैक्स होते हैं आपके पास। तो इवेंट बी है सेलेक्ट अ हार्ट फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, कि आप डेक ऑफ कार्ड्स में से हार्ट का कोई कार्ड निकालें, तो हार्ट्स का अपना एक जैक होता है। तो ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर ओवरलैपिंग इवेंट्स। क्यों? क्योंकि पहले में आपने जैक सेलेक्ट किया है और दूसरे में हार्ट सेलेक्ट किया है, तो हार्ट्स का भी जैक हो सकता है। तो आप देखें यहाँ पे हार्ट्स का जैक जो है वो ओवरलैपिंग एरिया में आ रहा है, तो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को समझना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के लिए एडिशन रूल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट देगा हमें। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, कि फॉर्मूला यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब देखें आप यहाँ पे आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। मैंने बताया था कि एडिशन तब करेंगे जब और यूज़ होगा, ओ आर, एंड यूज़ होगा मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, और यूज़ होगा एडिशन यूज़ करेंगे। So probability of event B or A is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A and B. Now this A and B is the overlapping area. ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे मैं आपको वापस लेके चलता हूँ और इसमें आप देखें कि ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, दिस इज A and B। इस जगह पे इवेंट A and B दे आर बोथ टुगेदर, तो इसको हमने फॉर्मूला में से माइनस करना होता है जब हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। अगर तो हमारे पास इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओवरलैप नहीं करते, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। मसला ये है कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो ओवरलैपिंग जीरो हो जाती है, तो माइनस जीरो का कोई इम्पैक्ट होता नहीं, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। हमारे पास क्या बाकी रह जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं। यू रोल अ डाई, आपने एक डाई रोल की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू रोल अ नंबर लेस देन 3 और अ 4। मतलब कि आपने डाई रोल की, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आपका जो आउटकम है वो लेस देन 3 है। लेस देन 3 क्या होता है? 1 एंड 2, या फिर वो 4, एग्जैक्टली 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब जब एडिशन रूल आएगा तो आपने हमेशा ये देखना है कि आपकी स्टेटमेंट में इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या ओवरलैपिंग है। इफ दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम ये ब्लू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे बिकॉज दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 1 and 2 has nothing to do with 4 when you roll a die. So the probability of less than 3 plus probability of 4, इन दोनों को simply हम add कर देंगे। So less than 3 जो है हमारे पास क्या है? 1 and 2। 1 की probability क्या होती है? 1/6 plus 2 की probability 1/6, तो ये क्या हो गया? 2/6। तो इन दोनों की probability आ गई हमारे पास 2/6। और 4 की क्या probability होती है? 1/6। तो इनको ऐड करेंगे 3/6, ये आपके पास 50% probability आ जाएगी इस एडिशन रूल इवेंट की। आगे देखें जी, वही जैक वाली एग्जांपल, क्योंकि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? अ कार्ड इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ जैक और, अगेन की वर्ड इज और, द कार्ड इज अ हार्ट। या तो वो जैक है या फिर हार्ट है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को हमने ऐड करना है। तो लेट्स सी, selecting a jack or selecting a heart is equal to probability of jack plus probability of heart। एक जैक है, पहले उसकी probability आ गई, प्लस probability of heart जो कि सेकंड है, माइनस the overlapping area, माइनस probability of jack of hearts। कि हार्ट्स के 13 कार्ड्स में भी एक कार्ड है जो कि जैक का कार्ड है। तो probability of jack कितनी है? टोटल 4 जैक्स होते हैं 52 कार्ड्स में से, तो 4/52 उसकी probability आ गई। हार्ट्स की probability कितनी है? 13 हार्ट्स होते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स में, तो उसकी probability इन दोनों को ऐड कर दिया। अब ओवरलैपिंग एरिया देखें, जैक ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं? ओनली 1। सो 52 कार्ड्स में देयर इज ओनली 1 जैक ऑफ हार्ट्स, तो इसको हमने माइनस करना है बिकॉज दिस इज ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4 + 13 17 - 1 16, सो 16/52 एंड दैट इज इक्वल टू 30.8%। ओके जी, सो ये इन दो इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी का स्कोर है वो क्या है जी? 30.8%। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल से। अगेन हमने ये डिसाइड करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जब भी एडिशन रूल को देखेंगे। सो 10 कॉलेज स्टूडेंट्स वर सर्वेड। आपने 100 स्टूडेंट्स को
100 students were surveyed and asked how many hours a week they spent studying. The results are in the table below. Find the probability that a student spends between 5 and 10 hours or more than 10 hours. हमने क्या देखना है कि 5 and 10 hours, तो ये हमारे पास 5 से 10 घंटे का एक सेक्शन है, और more than 10 hours, एक सेक्शन हमारे पास more than 10 hours का है. So they don't overlap, they are different from each other, so the events are mutually exclusive. 5 to 10 is different from more than 10, right? So let's find out the probability of 5 to 10 hours or more than 10 hours is equal to probability of 5 to 10 hours plus probability of more than 10 hours. ठीक है? If I want to write this, I would write it a little more explicitly. More than का sign यहाँ पे add कर दूंगा. तो हमारे पास there are 46 people who study from 5 to 10 hours. ये देखें 5 to 10 hours कितने लोग पढ़ते हैं? 46. ये टोटल है हमारे पास out of 100. So 46 by 100, ये हमारे पास 5 to 10 hours पढ़ने वाला की तादाद आ गई, और there are 30 स्टूडेंट्स जो कि more than 10 hours पढ़ते हैं. ये हमारे पास स्टडी का टोटल है 30 by 100. तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76 by 100, which is 76%. So the probability of an event in which the outcome is students of studying for 5 to 10 hours or more than 10 hours is equal to 76%. ठीक है? So इसके बाद हम काउंटिंग रूल्स पढ़ेंगे.